جو آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں منی بچہ تحریک ترجمان نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ثانی غازی ملت محترم فرات اللہ خان انجینئر صاحب حلقہ یعقوب پر کے امیدوار سے کہ وہ آپ کو مخاطب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم. شہنشین پہ تشریف فرما قائدین اکرام، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی معزز دختران ملت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو چکا اور سارے ملک میں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کی بنیاد پہ مستقبل کی حکومت کو قائم کرنے کی جدوجہد پہ گامزن ہے. اور اس ملک کی اقلیت بالخصوص مسلمان جب کبھی اپنی رائے کو قائم کرے گا تو یقیناً اس کے سامنے دنیا بھر کے 150 کروڑ مسلمانوں کے مسئلے اس کا مسئلہ ہے. ملکی سطح پر 30 کروڑ مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم، اس مظالم کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے فیصلے کو کرے گا، اپنی رائے کو قائم کرے گا. اور بالخصوص ایک نیا اسٹیٹ تلنگانہ بنا اور اس تلنگانہ میں ہم 1.5 کروڑ ہیں اور اس 1.5 کروڑ مسلمانوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ کل آپ کے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا نمائندہ کل ایوان اسمبلی میں آپ کی ترجمانی کرے گا. آج آپ غور و فکر کی نظر سے دیکھیں تو آپ کے سامنے یہی پس منظر ہے کہ آج عالمی سطح پر یہ حالات ہے کہ ساری دنیا ایک بات پہ گامزن ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. چاہے امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو، اس کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو مسلمان دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے. یورپ کے حاکموں کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد اور آتنکوادی ہے. ویسا ہی حال ہندوستان میں ہے کہ ہندوستان کے حاکموں کے سامنے کوئی بات ہے تو مسلمان آتنکوادی اور ٹیررسٹ و دہشت گرد ہے. ایسے حال و ماحول میں جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کا فیصلہ اس تمام مسائل کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ مستقبل میں آپ کی ترجمانی کون کرے گا. آج آپ خود غور کیجئے، اس یہود و نصارہ کی ساری طاقتیں روح زمین پر مسلمانوں کی عرص حیات کو تنگ کیا. آج گزشتہ 20 سال میں کم سے کم 3 کروڑ مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. آج مسلمان شہادت اور شہادت پہ شہادت مسلمان کی ہو رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں. آج ذرائع ابلاغ چاہے پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا آج ایک بات پہ گامزن ہے کہ مسلمانوں کو غلط روشنی میں دکھانا. اور سر پہ ٹوپی پہننے والا مسلمان ٹیررسٹ، داڑھی رکھنے والا مسلمان ٹیررسٹ، آج قرآن پڑھنے والا مسلمان ٹیررسٹ، آج سجدے کرنے والا مسلمان ٹیررسٹ. آج وہی حالات ہندوستان میں ہے. اور ہندوستان میں یہ سنگھ پریوار، یہ RSS، یہ BJP جو عالمی سطح پر اسلام دشمن طاقتیں ہیں، یہ ان کی اٹوٹ کڑی ہندوستان میں اس کی سنگھ پریوار ہے. اور پھر اس ملک میں باور کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں قانون باقی ہے، انصاف باقی ہے، آئین باقی ہے. تو آپ خود غور کیجئے کہ آج جس قوم کو ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جہادی قرار دیا جا رہا ہے. ارے ہمارے اسلاف تھے کہ اس ہندوستان کے شرق و غرب میں آزادی کا نعرہ دیا. اس ہندوستان میں اگر ہندوستان کو آزادی کا تصور کسی نے دیا تو علامہ فضل حق خیرآبادی کی شکل میں اس ہندوستان میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا. رنگون کی جیل میں کسی نے زندگی کو کاٹا تو ظفر شاہ بہادر کی شکل میں ہم نے زندگیوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کیا. 18,000 علماء جامع شہادت پی کر اس ہندوستان کی آزادی کو آزادی دلائی. آج اس قوم کے اس 60 سال کے عرصے کے اندر 60,000 فسادات دیے. اس 60,000 فسادات میں بہتے ہوئے خون کا رخ گنگا اور جمنا کی طرف کیا جاتا.
تو ہندوستان میں گنگا اور جمنا سرخ ہوتی اور یہ بیان کرتی کہ اس ملک میں کتنا مسلمانوں پہ مظالم و ظلم ڈھایا گیا. اور پھر آج سماجی انصاف کی بات کی جاتی ہے. میں ایک ایسے علاقے میں کھڑے ہو کے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہے کہ جہاں قابل ترین لوگ رہتے ہیں جو قانون کی بات جانتے ہیں, وہ آئین کی بات جانتے ہیں, ناانصافیوں کے چہرے کو پہچان سکتے ہیں. بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے, آج تحقیق کا دور ہے. دنیا تحقیق کی بنیاد پر دریافت کر کے فیصلے کر رہی ہے کہ کرنا کیا ہے. تو آپ آج تحقیق کیجئے کہ آج اس ملک میں 60 سال میں سماجی انصاف کا نعرہ دیا گیا, اور جب تحفظات کی بات آئی, ریزرویشن کی بات آئی, تو ہر اس ملک میں ریزرویشن کا جب قانون میں ترمیم ہوئی, ہندوستان کا آئین 14 یہ اعلان کر رہا تھا کہ اس ملک میں چاہے ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ پارسی ہو کہ مسلمان ہو, سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے. لیکن قانون میں ترمیم آئی 15A کے تحت جب ترمیم آئی, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آیا, تو اس کا قانون میں تبدیلی آئی اور یہ اعلان کیا کہ اس ملک میں سماجی پسماندگی کے سطح کے نیچے رہنے والے ہندوستان کے ہر باشندے کو نوکریوں میں تحفظات دیے جائیں گے, ملازمت میں تحفظات دیے جائیں گے. پھر 16A کے تحت یہ اعلان کیا گیا کہ اس ملک میں سماجی پسماندگی کے نیچے جو طبقہ ہے, چاہے کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو, اس کو تعلیمی اداروں کے اندر تحفظات دیے جائیں گے. لیکن آپ غور کیجئے کہ جب تحفظات کا مسئلہ آیا تو اس ہندوستان سیکولر قوانین کی بات کرنے والے, انصاف کی بات کرنے والوں نے جب ریزرویشن کو انٹرپریٹ کیا گیا تو صرف اور صرف ہندو مت اور ہندو مذہب کی بنیاد پہ اس ملک میں SC/STs کو دیا گیا, OBCs کو دیا گیا. ارے قانون میں ترمیم کانگریس نے جب کبھی لائی تو کبھی مسلمانوں کو تحفظات کے دائرے میں نہیں رکھا, ریزرویشن مسلمانوں کو نہیں دیے گئے. 60 سال میں آج سچار کمیشن کی رپورٹ راجندر سنگھ سچار یہ اعلان کرتے ہیں کہ 60 سال میں مسلمان آج SC/STs اور پسماندہ طبقات سے نیچے آ چکا. جو قوم اس ملک پہ 800 سال حکومت کی, جس قوم نے جس کے اسلاف نے اس ہندوستان کو تاج محل دیا, قطب مینار دیا, لال قلعہ دیا, شرق و غرب کو ہندوستان کے سجا دیا, اور آج اس قوم کی حالت ہے کہ SC/STs کے نچلی سطح پہ مسلمان آ گیا. اور پھر سماجی انصاف کی بات کی جاتی ہے اور پھر مسلمانوں پہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے, دیش دروہی ہے, دیش دشمن ہے. ایسے حالات میں آپ کو سوچنا ہے کہ کل آپ سے ووٹ لے کے کامیاب ہونے والا نمائندہ کیا اس ملک کے ایوانوں میں آپ کی ترجمانی کرے گا, اور حقوق کی لڑائی ہوگی. اس ملک میں جمہوریت کی اور جمہوری قانون کے مطابق جو حقوق ہے اس حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمائندے کو منتخب کرنا ہے. آپ خود غور کیجئے, آج حالات کچھ ایسے ہیں کہ آج ذرائع ابلاغ کی جانب سے سنگ پریوار جو عالمی سطح پر یہود اور نصارہ کے ایجنٹوں کی حیثیت سے ہندوستان میں مسلمانوں کی عرص حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے. اس ملک میں 2 قسم کی دہشت گردی ہے, 2 قسم کی فرقہ پرستی ہے. ایک دہشت گردی سرکاری دہشت گردی ہے جو قانون اور پولیس کی شکل میں اور سرکاری دفترات کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے, وہ سرکاری دہشت گردی ہے. تو دوسری دہشت گردی اس ملک میں ٹیررزم, سنگ پریوار, وہ RSS کے نام پہ کبھی نام بدل کے آتے رہے, کبھی جن سنگھ کے نام سے آئے تو کبھی ہندو منانی کے نام سے آئے تو کبھی ہندو مہاسبھا کے نام سے آئے تو کبھی وشو ہندو پریشد کے نام سے آئے تو کبھی ہندو واہنی کے نام سے آئے تو کبھی بجرنگ دل کے نام سے آئے تو کبھی شیو سینا کے نام سے آئے. ہندوستان کے شرق و غرب میں اس دہشت گرد نے ہندوستان میں مسلمانوں کی عرص حیات کو تنگ کیا اور پھر مسلمان ٹیررسٹ. ارے آپ خود غور کیجئے کہ آج ذرائع ابلاغ اس ملک میں چاہے پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا ایک ہی بات پہ کامزن ہے کہ نریندر مودی پرائم منسٹر بنے گا. اس ملک میں ہندوتوا کی بات کی جائے گی اور یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہندو ہت کی بات کرے گا وہ اس ملک میں حکومت کرے گا, ہندو ہت کی جو بات کرے گا وہ ہندوستان میں راج کرے گا. آج اخبارات لکھ رہے ہیں, آج کے ہندو اخبار میں سینٹرل پیج پہ ایڈیٹوریل آ رہا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے جو ہندوستان میں ہندو ہت کی بات کرے گا وہ ہندوستان میں راج کرے گا. یہ نادان ہے, یہ نہیں جانتے کہ کسی ملک میں جب اکثریت اور اقلیت, میجورٹی اور مائنورٹی کے نام پہ کوئی حکومت قائم ہوتی ہے, اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں جہاں اکثریت اپنے مذہبی نظریات کی بنیاد پہ ملک میں حکومت کو قائم کرتا ہے اور اقلیتوں کے حقوق اور جمہوری حقوق کو پامال کرتا ہے, اس ملک میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا, اس ملک اضطراب کی نظر ہو جاتا ہے, وہ ملک کی سالمیت ٹکڑے ہو جاتی ہے. آج جو سنگ پریوار یہ اعلان کر رہا ہے کہ کامن سول کوڈ نافذ کیا جائے گا, اس ملک میں شریعت محمدی کو ختم کر دیا جائے گا. ارے آج یہ اعلان کرنے والے کہ ہندو ہت کی بات کرنے والے یہ RSS یا BJP یا سنگ پریوار
اس ملک کی آزادی کے لیے کوئی سنگ پریوار کا اٹھے اور تاریخ بتائے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے کسی ایک RSS والے نے قربانی دی. اس ملک کی آزادی کے لیے کوئی BJP کا نیتا کرتا دھرتا جیل گیا, کوئی اس آزادی کے لیے مرا, بلکہ یہی تو انگریز کے مقبول تھے جو آزادی کے خلاف تھے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی دعویداری حکومت کی بات کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی طرف سے ہاتھ کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو آپ غور کیجئے, ایسے حالات میں جو عالمی سطح کا پس منظر ہے, جو قومی سطح کا پس منظر ہے, جو علاقائی سطح کے مسائل ہے, ان مسائل کے حل کے لیے کیسا نمائندہ منتخب کرنا ہے وہ آپ کو سوچنا اور فیصلہ کرنا ہے. یقیناً آج یہ جلسہ مجلس اتحاد اور مسلمین کے خلاف نہیں, یہ جلسہ کسی فرد اور خاندان کے خلاف نہیں, یہ جلسہ شخصی طور پر کسی اسد الدین اکبر الدین یا ممتاز خان کے خلاف نہیں, بلکہ مسائل پہ گفتگو اور مظلوم کے حقوق کی لڑائی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کسی معاشرے میں جب تک حقدار کا حق ادا نہیں ہوتا اضطراب ختم نہیں ہوتا, جب تک حقدار کا حق ادا نہیں ہوتا, اور صادق الذی حق الحق, جب تک حقدار کا حق نہیں ملتا دنیا میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا. آج ایک طرف تو یہ پاپی حکومت کانگریس کی جو سیکولرزم کے نام پہ 60 سال سے انگریزی کی اصطلاح میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں, آپ سمجھیں گے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ دو طریقے کی فرقہ پرستی ہے. ایک فرقہ پرستی ہے جس کو پریگمیٹک کمیونلزم کہا جاتا ہے. پریگمیٹک کمیونلزم حکمت کے مطابق اس ملک میں مسلمانوں کو ڈبانا اور فرقہ پرستی کرنا. اس ملک میں بھاگلپور کا فساد کس نے دیا, ملیانہ کا فساد کس نے دیا, بھیونڈی کا فساد کس نے دیا, بابری مسجد کو کس نے شہید کیا, کس نے اس ہندوستان میں 60 سال میں فسادات دیے, اسی کانگریس نے دیے, اسی BJP نے دیے. اور دوسرا فرقہ پرستی ایک پروگرامیٹک کمیونلزم, منصوبے کے تحت ہندوستان میں یہ ہندو دہشت گرد منصوبہ بند فرقہ پرستی کرتے رہے. تو یہ دو فرقہ پرستی کے درمیان میں مسلمانوں کی زندگی اور مسلمان کو سوچنا ہے کہ کیسے باقی رہنا اور مستقبل میں اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے. یہ وقت کا اہم تقاضا ہے. یہ الیکشن جو آج جمہوریت کے نام پہ ہو رہا, آج دنیا کے جمہوریت اور جمہوری نظام میں ایک انقلابی تبدیلی آ رہی ہے. آج 10 سے 15 دن پہلے کی تاریخ ہے کہ یوکرین میں وہاں کا پرائم منسٹر بھاگ گیا. جمہوریت کے نام پر ساری دنیا میں یہ حالات ہے کہ جو منتخب ہونے والے نمائندے چاہے وہ MP کی شکل میں ہو یا اسمبلی میں ہو, آج ان کی حالت یہ ہے کہ الیکشن جیتنا اور اپنے خاندان کے لیے دولت جمع کرنا, اپنے خاندان کے لیے اربوں روپے جمع کرنا, عمارتیں بنانا, یہ جمہوری نظام کا مزاج بن گیا. اور وہی کچھ آج حیدرآباد میں ہو رہا ہے جو سارے ہندوستان میں ہو رہا ہے. ارے ہندوستان میں ہوتا کوئی افسوس نہیں تھا, لیکن آج ہمارے اسلاف کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر آج مظلوم کا حق ادا نہیں ہو رہا. میں جس علاقے میں ٹھہر کے گفتگو کر رہا ہوں, اے معزز مسلمانوں, یہ التجا, یہ فریاد میری نہیں, یہ مظلوم مسلمانوں کی فریاد ہے. میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا, میں اقتدار نہیں چاہتا, لیکن آج محلے محلے, گلی گلی, چپا چپا, گھر گھر پھرنے کے بعد میرے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ میری ایمانی ذمہ داری ہے اس مظلوم مسلمانوں کی آواز بن کر ملت کی عدالت میں ان کی فریاد رکھوں اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا. آج اس علاقے میں ہوں, حلقہ یاقوت پورا آج 75% سلم علاقہ ہے. آج حلقہ یاقوت پورا 75% سلم علاقہ, تالاب کٹا, امان نگر ہے, امان نگر بھی, بھوانی نگر, آج یہ تمام خلندر نگر, اویسی نگر, یہ تمام سلم علاقے ہیں. اور 25% علاقہ جو کالونیوں کی شکل میں ہے تو SRT کالونی, واحد کالونی, سنتوش نگر کالونی. اس 25% علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے یا نہیں, آپ غور کیجئے کہ اس 75% علاقے میں آج تعلیم کے لیے ترسنے والا مسلمان بچہ, آج صاف پانی کے لیے گھر میں ترسنے والا مسلمان, آج ضعیف دوا کے لیے ترستا, اور پھر آج مرکز سیاسی باقی, مجلس اتحاد اور مسلمین باقی. آپ غور کیجئے کہ گزشتہ 20 سال میں جو نمائندے مجلس اتحاد اور مسلمین کے MLA بنے یاقوت پورے میں بیٹھے, آج میں اس موقف میں ہوں, اس تعلیم یافتہ علاقے میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بزرگوں سے رجوع ہوں کہ آپ دریافت کیجئے کیا اس 20 سال میں اس علاقے کے MLA نے 20 منٹ
ऐवान असेंबली में क्या मजलूम मुसलमानों की नुमाइंदगी की, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया, इस हल्के में होने वाली नाइंसाफियों के लिए या इस हल्के की तरक्की के लिए 20 साल में 20 मिनट उठाया, तो यकीनन आप उनको वोट दीजिए। अगर जिसने 20 साल में 20 मिनट आवाज नहीं उठाई, आज किस सूरत से हल्के में वोट मांगने के लिए अरे 20 साल का अरसा भाई, 20 साल के अरसे में अमानुल्लाह खान ने एमएलए की हैसियत से बस्तियां बसा दिया, तालाब कट्टा, बाबा नगर, रियासत नगर, अमान नगर है, भवानी नगर, बस्तियों पे बस्तियां, 20 साल के एमएलए की हैसियत से जब बस्तियां बसा दिया तो मुसलमानों का खिला बना। आज हैदराबाद खिला है तो इन्हीं बस्तियों से खिला बना। आज बीजेपी हैदराबाद में खौफजदा है, उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये किसका नजरिया था? 1980 में एक शख्स का नजरिया था कि यहाँ के जोग्राफिया को तब्दील कर दिया, तवाज़ुन को तब्दील कर दिया, और इनक़िलाबी की कामयाबी है कि आज 11.5 लाख मुसलमान हैदराबाद पार्लियामेंट सीट में है। आज 11.5 लाख आप है और 6 लाख अगयार है। बीजेपी अब जीतने वाली नहीं। बीजेपी सुबह क़यामत तक हैदराबाद में जीत नहीं सकती। ये मरहूम गाजी मिल्लत का कारनामा है। और आज बीजेपी तो याकूतपुरे में नहीं जीती रहा। अब डर किस बात का? अब यह डेवलपमेंट की बात करो, तरक्की की बात करो। मैं इस इलाके में हूं, यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अच्छे महल्ले में रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तमाम सहूलतें दिया। आपका एक वोट, आपकी एक वोट की राय कल तालाब कट्टे में वो मजलूम मुसलमान बच्चा जो तालीम के लिए तरस रहा, उसको तालीम का आसरा बनेगा, उसको तालीम के लिए सहूलत पैदा करेगी। उस नजर के साथ तहरीक का साथ दीजिए कि कल तहरीक का उम्मीदवार कामयाब होगा तो उस मजलूम बच्चे के लिए काम करेगा, उस मजलूम बच्चे के लिए काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो ताकतवर है ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सब कुछ दिया, जहां डालो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत घर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से मुसलमान है। लेकिन जरा तालाब कट्टे में भी एक बार जाके देखो, आज मुर्तुजा नगर का नाला आपके बाजू है। अगर आप जैसे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान 5 मिनट मुर्तुजा नगर नाले के बाजू रहने वाले मुसलमान बहनों की शिकायत सुनो और उसके बाद फैसला करो कि नुमाइंदा कौन, वोट किसको देना है। आज मुमताज अहमद खान साहब खिला 20 साल एमएलए रहे। अगर किसी को शिकायत है तो स्टेज पे आओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। ये तो असलाफ की जमात है, ये तो कायदे मिल्लत की जमात है, ये सिद्दीक़ अख्तर कासिम रिजवी की जमात है। ये जमात 3 लाख रज़ाकारों के शहादत की जमात है। ये जमात गाज़ी मिल्लत ने 40 साल कुर्बान किया। इसके खिलाफ मुस्लिम माशरे को एक फैसला करना होगा ताकि आज मजलिस का कोई डायरेक्शन है ना मोमेंटम है। अगर डायरेक्शन और मोमेंटम आएगा, कल याकूतपुरे से तहरीक की कामयाबी के बाद एक बड़ी तब्दीली आएगी। तमाम लोगों के मिजाज बदलेंगे, सोच और फिक्र बदलेगी, नई फिक्र आएगी, नया रास्ता तलाश करना होगा और मजलूमों के लिए काम करना होगा। आज कोई एजेंडा नहीं है, कल एजेंडा होगा। आज प्रोग्राम नहीं है, कल प्रोग्राम बनाना होगा। आज कोई रोड मैप नहीं है, कल हल्के के एमएलए सतह से, इल्मी सतह से, समाजी सतह से, माली सतह से, माशी सतह से आप किसी के मरबूब नहीं। आपको कोई डरा नहीं सकता। ये कोई सलम इलाका तो नहीं है कि पहलवान आके डर जाए। यहाँ के लोग काबिल तरीन है ना। लिस्ट बनाओ, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाओ। उसके बाद मुमताज अहमद खान आए तो उनसे पूछो, ये चिट्ठी पे लिखा हुआ है और आपके खिलाफ तहरीक का उम्मीदवार फरतुल्लाह खान आया था और ये कहा ये गलत है, ये सही है, दरियाफ्त कीजिए। और मैं कोई लंदन और अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेरिस की बात, यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं, हल्के याकूतपुरे की बात कर रहा हूं, जहां आप खड़े होकर 5 मिनट में जाके दरियाफ्त कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं। किसने स्कूल बेचा याकूतपुरे में? स्कूलों का जाल खत्म हो गया। आज मजलूम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कोई तालीमी इदारे नहीं। अलीजा कोटला, चंबेली का मंडवा कितनी दूर है भाई आपके घर से? 5 मिनट का रास्ता है। तहकीक कीजिए, मालूम कीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। सिटी गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू, चंबेली का मंडवा, तालाब कट्टा, गंगानगर, ऐसे स्लम बस्तियों से आके वहां तालीम हासिल करते थे। मेरे मरहूम वालिद अमानुल्लाह खान ने 1999 में एमएलए की हैसियत से बनवरलाल कलेक्टर को लाए और वो
जगह को एक्वायर करा और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8 लाख रुपए इमीडिएट सैंक्शन हुए, मुसलमान बच्चियों की तालीम का आगाज हुआ। लेकिन उनके इंतकाल के बाद यही मुमताज अहमद खान, इनके भाई मुख्तार अहमद खान, दोनों मिलकर उर्दू मीडियम स्कूल खाली कराए और भेज दिए 10 करोड़ रुपए के अंदर। क्या यही मुसलमान एमएलए का कारनामा है? इसकी बुनियाद पर टिकट दिया गया। जाके आप दरियाफ्त कीजिए। मैं और मेरे मरहूम सदर आदम मलिक साहब, चीफ मिनिस्टर से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशनल कमिश्नर, हर जगह पैरवी करते रहे कि इस इदारे को खत्म नहीं किया जाए। ये स्कूल मजलूम गरीब बच्चियां तालीम कर पढ़ते हैं, लेकिन यह हुकूमत की नाइंसाफी और हुकूमत जालिम का साथ जालिम देती रही। उर्दू मीडियम स्कूल खत्म हो गया, बेच के किसने पैसे कमाए? जाके दरियाफ्त कीजिए, दरियाफ्त कीजिए, तहकीक कीजिए। आप भी माशरे में जिम्मेदारी रखते हैं, उस मजलूम बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी कफालत, उनकी तालीम आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके महल्ले के करीब रैन बाजार पुलिस स्टेशन के बाजू के एक स्कूल था उर्दू मीडियम, दारुल यतामा स्कूल। आप तहकीक कीजिए जाके, दारुल यतामा स्कूल, उस स्कूल को खाली करा के किसने बेचा? बल्दिया में जाके देखो, मुमताज अहमद खान का लेटर है, सारी फाइल मेरे पास है। मैं और आदम मलिक साहब रमजान में रोजे की हालत में धरना देते रहे। स्कूल के सामने 2 घंटे पुलिस स्टेशन के सामने बैठा धरना दिया और एजुकेशन कमिश्नर करने गया, डीओ करने गया, लेकिन उस स्कूल को गिरा दिया गया, बेच दिया गया। यही काम नुमाइंदे का है। क्या आप फैसला किए? नंबर 3, दरीचा माता स्कूल, माता की खिड़की, किसने खाली करा के बेचा? मुमताज अहमद खान और इनके साथियों ने उर्दू मीडियम स्कूल खाली करा के बेचा। संतोष नगर मादन्नापेट सेंट जेवियर स्कूल, हूं आदम मलिक साहब सदर, हम 2 मिलकर मेहनत करते रहे कि इस सरकारी सर्वे नंबर 56 उस जमीन गवर्नमेंट लैंड, आज इंटरनेट का दौर है, जाके आज हैदराबाद कलेक्टर की साइट पर आप मार के देखो, क्या संतोष नगर सरू नगर मंडल में सर्वे नंबर 56 आज भी इंटरनेट पे गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर किया जाता है। और 28,000 गज जमीन 20,000 रुपए गज से बेचकर मुमताज अहमद खान और मुख्तार अहमद खान ने करोड़ों रुपए कमाए और मुमताज कॉलोनी के नाम से आज आबादी की। ये किसका हक मारा गया? हम तो चाह रहे थे कि वहां एजुकेशन सेंटर बने, यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके पढ़ रहे, नारायणा स्कूल में, फलाना स्कूल में, वैसे स्कूल कायम हो, केजी से पीजी बने। लेकिन किसने बेचा भाई? आपके एमएलए ने बेचा। और लिखो कि आपके घर के करीब दुर्रे शवाई स्कूल, उसके सामने 7 एकड़ जमीन थी। मरहूम अमानुल्लाह खान ने 89 के फसादात के बाद उस जमीन को, जो मुसलमानों की एवेक्यू प्रॉपर्टी थी, जो पाकिस्तान चले गए, उस जमीन को गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर किया। उसके बाद गैर कौम के लोगों ने कब्जा किया, फसाद बर्पा किया, उसको एक्वायर किया गया। खूली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अलॉट किया गया। खूली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए हल्के याकूतपुरे में एक मिनी स्टेडियम और कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए बजट को सैंक्शन किया गया। लेकिन कुली कुतुब शाह का बोर्ड लगा हुआ था अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसको निकाल कर फेंका। और जाके दरियाफ्त कीजिए, 2 मिनट का रास्ता है ना आपके घर से, जाके दरियाफ्त कीजिए। ये 2 भाइयों ने, मुमताज खान, मुख्तार अहमद खान ने प्लाटिंग करके बेच के करोड़ों रुपए कमाए। क्या यही काम एमएलए का है? यही काम है? अरे एक एमएलए की हैसियत से बस्तियां 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 बसा दिया मुसलमानों की, और ये एक एमएलए है कि सारे इलाका में स्कूल पे स्कूल बेचा, स्कूल पे स्कूल बेचा, गवर्नमेंट लैंड बेचा, हर चीज बेचा। तो अब किस बात का टिकट, किस बात की उम्मीदवारी, किस बात का वोट? मैं मौकूफ में हूं, अगर अरे इलेक्शन तो अभी बहुत टाइम है, नॉमिनेशन के लिए भी टाइम है। अगर किसी मरकजी मुकाम पर किसी मस्जिद में ये झूठ है तो आ जाओ, मैं तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड के साथ बुजुर्गों के सामने, नौजवानों के सामने रखने के लिए तैयार हूं। क्या ये बात गलत है? मैं तो तैयार हूं ना। इत्तेहाद की बात है, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, और इत्तेहाद की बात है तो मुसलमानों के सामने तमाम हालात को सामने रखेंगे और मुसलमान को फैसला करने दो। इसी का नाम इत्तेहाद है। स्कूल पे स्कूल बेचो, बच्चों के लिए इंडोर स्टेडियम, एक
एक मिनी स्टेडियम बन रहा, वो बेचो, हर चीज बेचो, अपनी इमारतें बनाओ, गौतमी स्कूल, नारायण स्कूल, शादी खानों पे शादी खाने, अपनी आल औलाद के लिए महीने को 1 करोड़ रुपए किराया, ये मासूम मजलूम बच्चा कहाँ जाएगा? क्या ये मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी नहीं है? ये मुस्लिम समाज को फैसला करना होगा। मैं इसलिए मुकाबला कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मजलूमों का हक और हक को हक तलफी हुई। क्या अगर मैं गलत हूं तो मेरा साथ मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए मेरा साथ। और मेरा भी एक प्रोग्राम है, एक एजेंडे के साथ आया हूं, नौजवानों से मुखातिब हूं कि 2 चीज है, यू डिफाइन द एजेंडा और द एजेंडा डिफाइंस यू। आज तक एजेंडा इन्होंने डिफाइन किया, यू डिफाइन द एजेंडा और द एजेंडा डिफाइंस यू। एजेंडा हम डिफाइन करेंगे, आप डिफाइन करेंगे। मुस्तकबिल में आप और हम बैठ कर डिफाइन करेंगे कि मुस्लिम माशरे में समाजियत और तरक्की के लिए क्या सिलसिला शुरू हो, क्या काम शुरू हो। मैं भी एक प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरा भी एक तालीमी मैदान में एक जहन है, जहां स्कूल खत्म कर दिए गए। मैं ये चाहता हूं और आपसे अपील करता हूं कि अगर मैं सही हूं तो मेरा साथ दीजिए। कल इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कामयाब बना दिया, आका के नालान पाक के सदक़े में अगर कल कामयाबी मिली, तो सबसे पहला मेरा इक़दाम ये रहेगा कि हर पोलिंग बूथ पे 1000 वोटर है। मैं बड़ी सलाहियत के साथ आपके सामने अपने इस जहन को रख रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक पोलिंग बूथ पे 800 से 1000 वोट है ना, 800 से 1000 वोट, और जहां 1000 वोटर है वहां कम से कम 2000 से 3000 बच्चे हैं। 2000 से 3000 बच्चे, इन 2 से 3000 बच्चों में कितने ऐसे माँ बाप हैं जो इस्तेताअत रखते हैं कि बगैर किसी तकलीफ की अपने औलाद की फीस भर सकते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो तकलीफ उठा के फीस भरते हैं स्कूलों की, और कितने ऐसे हैं कि फीस ही नहीं भर सकते? मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा, फिर के देखा, 75% स्लम इलाका है और मुसलमान आज बच्चों की तालीम के लिए खर्च करने के मौक़िफ़ में नहीं है। और मैं ये चाहता हूं, मेरा प्रोग्राम है, ये एजेंडा है, अगर अल्लाह कामयाबी दे तो मुस्तक़बिल के 5 साल में ये करने वाला हूं। हर पोलिंग बूथ को एक एजुकेशन जोन बनाएंगे, एक एजुकेशन जोन बनाएंगे। उस एजुकेशन जोन में इंशाअल्लाह ताला एक 200 गज की जमीन खरीदेंगे। और अहले खैर हजरात, आज बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए तयखोन दिया है, आज साथ है मेरे कि जहां स्लम इलाकों में स्कूल नहीं है वहां 200-300 गज जमीन खरीदेंगे। कलेक्टर को हम खुद डोनेट करेंगे और कलेक्टर से बजट सैंक्शन कराएंगे, वहां इमारत कायम करेंगे। हर 200-300 गज में 10 क्लासरूम बनाएंगे, हर क्लासरूम में 50 बच्चे, 500 बच्चे हर स्कूल में, और 150 स्कूल 150 बूथों पे कायम करेंगे। मुसलमानों के 240 बूथ है, जिसमें आज 150 बूथ आपके हैं, और प्रियोरिटी की बेसिस पे स्लम एरियों से इलाके में काम शुरू करेंगे, स्कूल कायम करेंगे, बच्चों की तालीम का इंतजाम करेंगे। इस तरह आने वाले 5 साल में इंशाअल्लाह, अरे 5 साल तो दूर की बात है, 2 साल के अरसे के अंदर अगर 150 स्कूल कायम करके हल्के याकूतपुरे में तालीम के इनकलाब को परवान चढ़ाने के लिए मैदान में आया हूं। 150 स्कूल, अगर एवरेज 500 बच्चे पढ़े, 2 साल में 65,000 बच्चों की तालीम का इंतजाम करने के इरादे से मैदान में आज एसआर की कालीमी ने इस मजलूम मुसलमानों की फरियाद की, मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों की अदालत में मजलूम मुसलमानों की फरियाद को पेश कर रहा हूं। क्या स्कूल खत्म हो गए ना? स्कूल तो स्कूल खत्म हो गए। अगर आप चाहते हैं कि उस मजलूम मासूम मुसलमान मुस्तहक मसाकीन के साथ खान की तरह इक़्तिदार की लालच और हवस दुनिया के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। आज 44 साल का हूं, 5 साल में इस हल्के की समाजी, इनकलाबी और तालीमी शक्ल को बदलकर दुनिया में हल्के याकूतपुरे को एक इज्जत का मुकाम दिलाने के लिए मैदान में आए। लोग याकूतपुरे में रहते हैं, पुराने शहर में, आज समाजी सतह पर नए शहर में ये जहन है, हल्के यूरोप जाए, कनाडा जाए, अब इनको खुद मुसलमान माशरे पे एतमाद नहीं रहा। इनकी प्रैक्टिस ये है कि पोलिंग बूथों पे कब्जा करो और कुछ गुमराह नौजवानों को
पैसे देकर ऑफिस दिलाओ। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन में ऑफिस डालना, पैसे लेना और फिर इलेक्शन के बाद तो ऑफिस खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म, कुछ माहौल ही नहीं। इसी का नाम जमात है, इत्तेहाद है। आप सोचिए, गौर कीजिए, इलेक्शन खत्म, हर महल्ले में एक माहौल भाई इलेक्शन और ऑफिस वालों। अरे ये ऑफिस इलेक्शन के बाद बंद क्यों हो जाते हैं? ये पैसा बांटना इलेक्शन के बाद खत्म क्यों हो जाता? क्या इलेक्शन के बाद मुसलमानों की मुफलिसी खत्म हो जाती? क्या इलेक्शन के बाद मुसलमानों के मसाइल हल हो जाते हैं? क्या इसी का नाम है क्या दावता खाना, गाड़ी पे फूल के हारा डाल के फिरना और गाड़ी पे एमएलए लिखाना और सलामा मारना? इसी का नाम है शान शौकत है? नहीं, ये मर मिटना और खिदमत करने के मुकाम का नाम नुमाइंदा होता है। आज आप गौर कीजिए कि आप उन बस्तियों में पानी के लिए लोग तसरस है। आज लाइट का मसला है, लाइट के धाबे पे धाबे हो रहे हैं और 31 मार्च आ गई, पानी का बिल दो वरना घर का नल काट देते, घर का नला काट देंगे। ये बंजारा हिल में क्यों नहीं काटते, जुबली हिल में क्यों नहीं काटते? ये साफ सफाई पुराने शहर में नहीं होती, जुबली हिल, बंजारा हिल, विजयनगर कॉलोनी में क्यों? अगर कल माहौल को बदलना है, माहौल को बदलना है, जाके देखो कचरे का अंबार है हर जगह, कचरे का अंबार है हर जगह। बोरियों का पानी नलों में आ रहा, लोग साफ पानी के लिए तरस रहे। ऐसे हालात में मुसलमान जी रहे भाई, तालाब कट्टे में, भवानी नगर में, मुर्तुजा नगर, समन के पास देखो, हर जगह देखो, जहांगीर नगर। कल इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म हो रहा, आज लाइट वाले आए, तालाब कट्टे में धाबा डाले, मुसलमान दुकानें बंद करके भाग गए, घरों को कुफला डाल दिए। एक वक्त था ना, तालाब कट्टे में लाइट वाले आए थे, शादी खाने में बंद कर को उनको बताए ना पुराने शहर में कैसा नुमाइंदा अमानुल्लाह खान और ताकत थी। कल हल्के याकूतपुरे में लाइट के चलाना याकूतपुरे में एमएलए मौजूद, सब मौजूद, जुल्म पे जुल्म हो रहा। अरे कल लाइट का चालान होगा तो याद रखो, ये जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा, लाइट के नाम पे जुल्म चल रही, अरे हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सब्सिडी पे लाइट दे। आज इंडस्ट्री को सब्सिडी, आज पुराना शहर एक पिछड़ा इलाका, कमजोर इलाका, और इस इलाके में कोई सब्सिडी नहीं। कल पुराने शहर को स्पेशल पैकेज और स्पेशल सब्सिडी के लिए कल ऐवान असेंबली में आवाज उठेगी, मुकाबला होगा। पुराने शहर में कोई लाइट का धावा, किसी की लाइट कटने नहीं दिया जाएगा, ये ऐलान मैं करता हूं। आज पानी का बिंदु काट देते, जाए काटी में खाना खाना, असेंबली ऐसी ठंडी रहती, सो के घर को आ जाना। इस वक्त अमानुल्लाह खान का दौर याद है ना, असेंबली में घुसते ही, दाखिल होते ही सब अलर्ट, पुराने शहर का टाइगर आ गया अमानुल्लाह खान, अलर्ट असेंबली में। आवाज उठी तो असेंबली हिलती। 23 साल असेंबली में कोई नहीं बचा। चिंदा रेड्डी से रह के एनटीआर, चंद्रबाबू नायडू, सब पुराने शहर का मजा लिए कैसा रहता बोल के। इंशाल्लाह फिर से असेंबली को बताएंगे कैसा चलती है असेंबली, हमारे हुकूक नहीं दिए। मेरी गुजारिश है कि इनकी काबिलियत की, आप 20 साल रह गए, फिर और तमाशा, अब एक नया तमाशा, गुंडों की गैंग लेके फिर रहे, 10-10 गाड़ी पीछे। मैं तो अकेला फिर रहा हूं भाई, आपकी बस्ती में अकेला आया आज, न कोई गैंग नहीं, कुछ नहीं। कुछ है तो ये मजलूम रियाज पाशा खादरी, आपके महल्ले के, मेरे मरहूम वालिद के दोस्त, ये बुजुर्ग थे, इनका हाथ पकड़ के घर घर आया राज। ये मेरी सरपरस्ती, ये खादरी खानदान का चश्मा चिराग मेरे सर पे हाथ रख के लेके आया। आओ मुसलमानों से मिलाता हूं, देखो ये रियाज पाशा खादरी है, मेरा बुजुर्ग, ये शकील साहब, इन लोगों ने लेके आया और मुलाकात हुई सबसे। मेरे को गैंग की जरूरत है, न किसी की जरूरत है। अल्लाह पे यकीन है, मेरा ईमान है कि कोई मेरे से उस वक्त तक मुकाबला नहीं कर सकता जब तक मैं गलत हूं। जब तक मैं सही हूं, मैं हक पे हूं, मैं मजलूमों के लिए लड़ूंगा। अल्लाह की मदद मेरा शामिल हाल है, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। मैंने बहुत मजालिम देखे,
बहुत मजालिम देखे। मैं भी आप जैसा एक नौजवान था, इंजीनियरिंग करके आया, यूनिवर्सिटी का टॉपर था मैं। जब आया बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस तारीख से लेके आज की तारीख तक मैंने जिंदगी को कभी ऐशो आराम से नहीं गुजारा। मेरा बैंक बैलेंस बंगला, बंजारा हिल में बंगले, शादी खाने मेरे कुछ नहीं है। 20 साल में मैं मिल्लत के मजलूमों के लिए काम करता रहा। रात के 2 बजे किसी ने फोन किया तो 2 बजे पुलिस स्टेशन जाके जिस हाल में हो सकता पुलिस वालों का मुकाबला। आज व्हाइट राशन कार्ड, सबसे बड़ा एजेंडा मेरा व्हाइट राशन कार्ड है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में कुछ ज्यादा लोग नहीं, मैं समझता हूँ 5-10% लोग होंगे व्हाइट राशन कार्ड। लेकिन आज व्हाइट राशन कार्ड पे गवर्नमेंट ये डिफाइन करती है, इंडिया वेलफेयर स्टेट है ना, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। इस मुल्क की जिम्मेदारी है कि यहाँ के गरीब लोगों को सहूलत पैदा करें। वरना आज मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में ऐसे हालात हिंदुस्तान के होने वाले हैं। आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिलो द पॉवर्टी लाइन हिंदुस्तान में 80% है। और ये कैपिटलिस्ट तबका, साम्राज्य का तबका आज मुल्क को तबाह कर रहा। 2G स्कैंडल, 1 लाख लूट के ये वतन परस्त, मैं भूखा प्यासा मुल्क के मोहब्बत में ऐलान कर रहा हूं कि मैं हर उस कानून के साथ हूं जो कानून के मुताबिक इंसाफ करे। हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है। अरे वो कारगिल की जंग हुई, ताबूतों का स्कैंडल, हिंदुस्तान के फौजियों का कफन किसने बेचा? इसी बीजेपी वालों ने बेचा ना। कफन का स्कैंडल, जो फौजियों का कफन बेच सकते हैं, कल हिंदुस्तान जैसा वतन बेच सकते हैं, यह मुसलमान ऐलान कर रहा है हिंदुस्तान में। जिसने फौजियों का कफन बेचा, कल ये मोदी हिंदुस्तान बेच देगा। और मुसलमान टेररिस्ट। आज व्हाइट राशन कार्ड समाजी सतह के नीचे पसमानदा तबकात को ये गवर्नमेंट ऐलान किया कि ये गरीब लोग हैं, इनको व्हाइट राशन कार्ड दिया गया और इनको 10 किलो चावल, 20 किलो चावल। आज तक ये आवाज नहीं उठी, ऐवानों में किसी ने नहीं उठाया, कोई नहीं उठाया। कल ऐवान असेंबली में सबसे बड़ा मसला ये होगा, ये आग हक की, ये शमा याकूतपुरे से उठेगी कल ऐवान असेंबली में। हल्का याकूतपुरे के नहीं बल्कि तेलंगाना स्टेट में जितने व्हाइट राशन कार्ड होल्डर है, जितने व्हाइट राशन कार्ड होल्डर है, वो किराए के मकानात में जितने लोग हैं, हाउसिंग अलाउंस देना। 60 साल की आजादी के बाद इस मुल्क में गरीब को सर पे छाया, सर पे एक छत हुकूमत नहीं ले सकती। आज राजीव गृह कल्पा के नाम पे 20 लाख फ्लैट बनाए जाते, लेकिन मुस्लिम अक़लियत को उसमें 1% भी नहीं दिया गया। MP मौजूद, MLA मौजूद, और हम लड़ रहे। अब नया मियाँ हर कोई तहरीक का नारा पकड़ रहे, मजलूम मुसलमानों की जमात। हजारों करोड़ है ना भाई, कम से कम लाओ, कम से कम अब तो खर्चा करो। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, मैं ऐलान कर रहा हूं 150 स्कूल खोलता हूं, कल आप खोलो। लड़ाई किस बात की है भाई, किस बात का टेंशन है? मैं इत्तेहाद चाहता हूं, आओ। कहां मिलना चाहते हो आओ, किस बुजुर्ग के सामने बैठ के बात करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। लेकिन बात हुकूक की बुनियाद पे होगी, कुरान की रोशनी की बुनियाद पे होगी। यह मुमताज अहमद खां के जैसा नहीं, तहरीक में से इधर से उधर नहीं। ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए, खुदा की कसम, ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए जो मजलूमों की कुर्बानियों की बुनियाद पे किसी को इख्तिदार दिलाता। व्हाइट राशन कार्ड ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जितने किराए के मकानात में लोग हैं, मैं घर घर फिर रहा हूं, रो रहे महीने को किराया नहीं दे सकते। रिसेशन, वी आर इन एरा ऑफ स्टैगफ्लेशन, जहां स्लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन, इसी का नाम स्टैगफ्लेशन है ना। स्लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन। आज आमदनी कम है, महंगाई ज्यादा है। कल तक कहते थे गरीब दाल रोटी खा के जिंदा रहता, लेकिन आज 65 रुपए किलो दाल इस गरीब घर में नहीं पका सकता। ये 60 साल के बाद हिंदुस्तान के हाकिमों ने करप्शन की बुनियाद पे आज इस सतह पे इंसान को ला दिया कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हिंदुस्तान का बाशिंदा परेशान। ये लड़ाई कौन लड़ेगा मजलूमों की? कल ऐवान असेंबली में सबसे बड़ा नारा व्हाइट राशन कार्ड के लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, इसलिए कि गवर्नमेंट खुद खरी है, गरीब है, समाजी सतह के नीचे है। क्या ये लड़ाई मजलूमों की लड़ना आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मुमताज अहमद खां 20 साल में कितने मजलूमों की बात करे बताओ भाई? अरे 20 साल में 20 मिनट बात नहीं करे, 20 साल में 20 मिनट
अरे 20 मिनट का टाइम मिलेगा तो 20 मिनट के 20 मिनट ऐवान असम्बली में बजा दूंगा, किसी को बात करने दूंगा, मजलूमों की बात करूंगा। आज पुराने शहर में लोन नहीं मिलता, नौजवान पढ़े लिखे हैं, कोई बैंक को जाओ बैंक बोलती है पुराना शहर ब्लैक लिस्टेड है। यही तजुर्बा है ना भाई, पुराना शहर ब्लैक लिस्टेड है। हर बैंक में आप जाती इस प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए तो नहीं मिलता लोन, इसलिए कि पुराने शहर के लोग पैसे नहीं देते, पुराने शहर के लोग क्रिमिनल है, ऐसा जहन बना के। एनआरआई भेजे तो अकाउंट में पैसे लेते बैंक वाले, एनआरआई अकाउंट पहले आइए दीजिए, बैंक का धंधा चलता। कल इंशाल्लाह 16 मई के बाद 16 मई को नतीजा निकलेगा, अल्लाह कामयाबी देगा तो सबसे पहला नारा ये रहेगा, नो लोन नो बैंकिंग इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। अगर पुराने शहर को लोन नहीं मिलेगा तो कोई बैंक नहीं चलेगी हैदराबाद में, कोई बैंक को चलने देंगे। कल स्टेट बैंक का घेराव, कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का घेराव, कल हर बैंक का घेराव, आईसीआईसी बैंक का घेराव, हर बैंक का घेराव करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बैंक हमको लोन नहीं देती। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन नया तमाशा, 60 करोड़ रुपए वापिस भी चले गए। एमएलए मौजूद, एमपी मौजूद, कारपोरेटर मौजूद, सब मौजूद। गरीब लोन के लिए जाता तो पहले बोलते 1 लाख का लोन है तो 10,000 रुपए बैंक में रखो। अरे 10,000 होते तो तुम्हारे घर लोन के लिए कहीं को आता, 10,000 रहते तो गरीब आता कहीं को लोन के वास्ते। पहले 10,000 रखो, फिर तुमको 30% सब्सिडी, 50% देगी। कोई बैंक कोई मुसलमान के किसी फॉर्म को इजाजत नहीं देती, कोई लोन नहीं देती, वो 10,000 डूब गए, बीच में दलाली करके 5-10 हजार गरीब मजलूम मुसलमान के दलाल खा रहे। ये दलाली के सिस्टम को बदलना होगा। कल कोई दलाली नहीं चलेगी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक रुपया ये बैंक देना होना, सीधा सीधा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन देना मुसलमानों को। ये बीच में बैंक से लियो, बीच में कलेक्टर से लियो नहीं। कल सीधा सीधा नई पॉलिसी बनेगी पार्लियामेंट असेंबली में, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोन मुसलमान देगा और सीधे सीधे मुसलमान को लोन देना, वरना ये सिस्टम, ये प्रोसेस नहीं चलेगा। इस प्रोसेस को बदलने के लिए एक मौका मुझको दो कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तमाम कवानीन, तमाम प्रोसेस को बदलकर, प्रोसेस को आसान करके, प्रोसेस को आसान से आसान करके मुसलमान नौजवान जो काबिल पढ़े लिखे ताजिर है, छोटी छोटी तिजारत कर रहे, उनको लोन लेने में आसानी पैदा करने के लिए एक मौका मुझको दीजिए। एमएलए साहब कितनों को लोन दिलाए भाई 20 साल में, कितनों को दिलाए? मियाँ इनको फुर्सत ही नहीं होती, बिल्डिंग बना रहे, इनको कहाँ होती। और आज सलाम इलाके में 80 गज पे घर बनाओ, बल्दिया वाले आ जाते। एक दौर था इमारत पे इमारत बनाए, कोई नहीं आए ना। अब कई को आ रहे, अमानुल्लाह खान थे जब तक कोई नहीं आए ना। मुमताज अहमद खान के बिल्डिंगा बन रहे, जाओ वाटा होटल के बाजू बड़ा बोर्ड लगा है, टूलेट फॉर बैंक, टूलेट फॉर हॉस्पिटल, कोई परमिशन नहीं है। मुसलमान 80 गज पे घर बनाया तो इनके ही मकबरा बल्दिया में मकबरी करते, तस्वीर कराते, मामला कराते, मांडोली कराते, उर्दू पैसे लेते, यूं लेते, ये मुस्लिम मुसलमानों से पैसे लेते हैं। कल ये दलाली बंद होना है, ये दलालों का सिस्टम बंद होना। अगर कोई बल्दिया का ऑफिसर पुराने शहर में आके म्युनिसिपल परमिशन सहूलत को पूछेगा तो उसकी जबान उखाड़ूंगा और बोलूंगा ये कानून के खिलाफ है। आज बेशुमार बार फोन करके आओ साफ करो, आओ साफ करो, बल्दिया साफ करो, बल्दिया साफ करो, कोई नहीं आते। इंशाल्लाह कल झाट ठहर के फोन मारो, वहां सरदार महल का टीएमसी रहना, फोन करा तो है ना, तो गाड़ी में डाल के लाके मोड़ियों में मुंडी लगड़ के बताऊंगा नुमाइंदे की ताकत क्या होती, मुंडिया लगड़वालू वाला क्या पे छोटे मोटे ऑफिसरों का क्या, बल्दिया कमिश्नर को गाड़ी में लाना, लगड़ के बताना हम ऐसा जी रहे गंगानगर में, हम ऐसा जी रहे तलाबकट्टे में, हम ऐसा जी रहे जावेद नगर में, हम ऐसा जी रहे मुर्तुजा नगर चमन में, जहाँ जानवर नहीं जी सकता और मजलूम मुसलमान जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या यह नुमाइंदगी है या क़ियादत है? ठीक है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता भाई, नहीं लड़ता इलेक्शन। जो इनको टिकट दिए उन्हों और मुमताज खान एक घंटे के वास्ते मुर्तुजा नगर
नाले के पास कुर्सी डाल के बैठना, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। मुर्तुजा नगर नाला पीछे आपकी बस्ती है भाई, गौस कहते हैं, उसके आगे जाओ गली के अंदर मुर्तुजा नगर नाला। 1 घंटा टिकट DSO वाले भी बैठना, MP के उम्मीदवार, MLA के उम्मीदवार, दोनों कुर्सी डाल के 1 घंटा बैठो, खाली 1 घंटा भाई। अरे जान दो, आधा घंटा बैठो, आधा घंटा, दोनों बीमार पड़ जाते, दोनों बीमार पड़ जाते, दोनों भी बीमार पड़ जाते। कैसा जीना गरीब मुसलमान वहां पे। हाँ, पहली प्रायोरिटी 3 महीने के अंदर हल्के याकूतपुरे की साफ सफाई, ऐसी जैसे नए शहर में साफ सफाई होती है वैसी नई सफाई यहाँ होना होगा। हाँ, सालाना भी हो रहे, याकूतपुरा स्टेशन के लिए टिकट काट रहे, दबिलपुरे के लिए काट रहे, फिर बड़े बाजार में काट रहे। अरे इनका टिकट कल हम काटेंगे इंशाल्लाह, टिकट हम काट के बताएंगे। हाँ, आज हुकूमत इतनी मखलूज, इतनी कमजोर हो गई कि गरीब के पास से पैसे लेके आज ये ड्रेस पहनेंगे क्या? हाँ, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, ACP हो, DCP हो, सर्कल हो, हमारा ऐलान है, हम हर उस कानून के साथ है जब तक कानून का पाबंद है। ये कानून के नाम पर ड्रेस पहन के दहशतगर्दी होगी तो दहशतगर्दी इतने दहशतगर्दी को बर्पा करेगी, तुम्हारे तार अलग कर देंगे और दिखाएंगे कि मजलूम को जुल्म मिलेगा, मजलूम को जुल्म होने नहीं देंगे, ये वादा है। आज लोनों का मसला, पुलिस का जुल्म, बल्दिया का मसला, व्हाइट राशन कार्ड का मसला, बच्चों की तालीम का मसला, आज स्कॉलरशिप नहीं देते, गरीब लोग, ज़ईफ लोगों को गवर्नमेंट देती 300 रुपए। 300 रुपए भी आज एक बुजुर्ग के लिए बहुत है भाई, जो गरीब है, जो बेवा औरतें हैं, उनको गवर्नमेंट 300-200 रुपए वजीफा देती। वो वजीफे के लिए कम से कम 100 बार दफ्तरों को जाना, ये लीडर की दफ्तर, वो लीडर का दफ्तर, ये दलाल के पास, वो दलाल के पास काम नहीं होता। और 200-300 रुपए के लिए गरीब मुस्लिम खवातीन रो रहे, भाई वजीफा नहीं मिलता, मैं महलों में फिर रहा हूं। अरे घर उन ज़ईफों को पैसे देना। मेरी दरख्वास्त है कि मैंने एक मैनिफेस्टो रखा, याकूतपुरे में हर पोलिंग बूथ पे एक स्कूल, तालीमी इदारा, 500 बच्चों का, और 150 पोलिंग बूथ पर 60,000 बच्चों की तालीम का इंतजाम अगर करना है तो एक मौका इस गुलाम मुस्तफा को दीजिए। मिल्लत की अदालत में फरियाद रख रहा हूं और आपसे उस मजलूम मासूम मसाकिनों के लिए भीख मांग रहा हूं कि एक मौका दो, उनकी तालीमी तरक्की को परवान चढ़ा के बताऊंगा कि नुमाइंदगी क्या होती है और हल्के का MLA क्या कर सकता है। आज मेरी गुजारिश है इस मौके महल्ले के लोगों से, इलेक्शन में अपनी, मेरा कोई TV चैनल नहीं है, मेरा कोई, फिर एक बार अपील करता हूँ, अल्लाह से दुआ को हूँ कि परवरदिगार, ऐ मौला, इस तहरीक के खिलाफ कश्ती को तुम किनारा लगा मौला, ऐ मौला, जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाके नमरूद से बचाया, इस जालिमों के जुल्म से हमको बचा परवरदिगार, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को बच्ची के पेट से निकाला मौला, इस जाहिरत के दौर से हमको बाहर निकाल मौला, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा किया मौला, उसी तरह इस दुनिया की कैद से हमको आजाद कर, एक बना तेरे प्यारे हबीब के सच्चे गुलाम बना, इस दुनिया में इज्जत की जिंदगी दे, ईमान की जिंदगी दे, मौला अली की शुजात दे, सुन्नत इब्राहिम की पैरवी करने की हमको तौफीक अता फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम फरतुल्लाह खान इंजीनियर साहब और हज़ा के उम्मीदवार जो आपको मुखातिब कर रहे थे, इसी के साथ की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है। हज़रात एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाइए। कल बरोज़ हफ्ता मौलाना आजाद नगर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक
हल्के हाजा या खुदपुर के उम्मीदवार का पैदल दौरा होगा और 3 बजे से 6 बजे तक रामचंद्र नगर का मुकम्मल दौरा होगा और कल बाद नमाज मगरिब एक अजमिशान जलसे मिनी बेदारी बमुकाम अल-सफा डेयरी अनमोल होटल से पहले आप तमाम हजरात से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर इसको कामयाब बनाए और तमाम हजरात से अदबन इसी के साथ जलसे की बरकत ऐलान किया जाता है और तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया जाता है और चौबीस आफतान का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। शुक्रिया खुदा हाफिज़। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा।